Hello, dear learners. Hope you are doing well and enjoying your studies. As you all know, the exam is approaching, so is the admit card. हाँ, साइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है. अभी तक चेक नहीं किया है तो एक बार चेक कर लो. एंड येस, टुडे वी आर गोइंग टू नो द पेपर ऑफ 2013 दिसंबर. फरवरी में भी एक पेपर हुआ था, अभी हम दिसंबर पर फोकस कर रहे हैं. द पेपर इज ऑफ पेपर 1 क्वेश्चन सेट ए. हमारा सेट है ए. Okay, so without wasting much of your precious time, let's get started. Moving to the very first question. Open book tests are recommended mainly because they reduce emphasis on rote memory. Option C, open book test in which the students are being helped. Aid of study material and references. हेल्प इज़ परमिटेड फॉर स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन. मतलब कि बुक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, ओपन कर लिख सकते हैं. वाई? टू रिड्यूस द एम्फोसिस ऑन रोट मेमोरी. रट्टा मारने में, जो रट्टा मारते हैं उससे बचने के लिए. लेस स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड मोर एज द प्रेशर ऑफ मेमोराइजेशन रिड्यूस्ड. फिर टीचर एम्फोसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है रादर देन सुपरफिशियल रीडिंग जो हम रट्टा मारने में पढ़ते हैं ऊपर से. डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, देन एनालिटिकल क्वेश्चंस, लिमिटेड टाइम. ये सारे एडवांटेजेस है ओपन बुक के. मूविंग फॉर द व्हाट इज़ द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग. इट इज़ फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरैक्टिव. सी, internet helps a lot in the education process. In fact, we are using internet and we are studying for our examination through the internet. Right now also I am interacting with you, so it is making learning interactive. Student teacher interaction or peer interaction, then effective teaching and learning tools are available over internet, keeping you updated, like keeping us updated with latest information of India and world. Easy access to quality education, interaction with digital media, learning with multimedia, and most important, cost effective and affordable education. Third, the most recently accepted paradigm of learning is that learner is a constructor of knowledge. Rather than transferring knowledge from teacher to learner, let the learner construct the knowledge, build the knowledge by self. It is the new paradigm. Learning to be an active way or active process rather than passive. टीचर को सुनकर जो होता है वो पैसिव होता है. लेट द स्टूडेंट लर्न देमसेल्व्स. इट इज़ सोशली इन्हांस्ड मेथड लर्निंग, constructed by learner rather than transferred. It builds the cognitive abilities and interpretation power of students. And also, learning is obtained through the interaction of learners' prior knowledge, experiences, ideas. यानी कि inference based learning होती है, तो वो students को काफ़ी positively influence करती है. We have discussed it in previous video also. Now moving for the fourth, the main purpose of including practical work in curriculum is, प्रैक्टिकल वर्क क्यों लाते हैं करिकुलम में? रिड्यूसिंग ओवर एम्फोसिस ऑन थ्योरी. लाइक द अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो डेवलपिंग वेरियस स्किल्स, करेक्ट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्कोर बेटर इन, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज है तो स्टूडेंट्स इमेजिनेशन पावर से एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे. कीपिंग स्टूडेंट्स एंगेज्ड थ्रू आउट द ईयर. नॉट मच क्लोज बट येस इट कैन बी. बट यहाँ पर क्या पूछा है? मेन पर्पस है ओवर एम्फोसिस थ्योरी पर ना कर इक्वली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन. Fifth, the best way to understand content is to read the content repeatedly. Like if you don't understand something, you read twice, thrice, like many times. बहुत बार पढ़कर जब वो चीज़ें क्लियर होती है तभी हमको ऐसा लगता है ओके नाउ आई गॉट द पॉइंट, नाउ आई हैव एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द एग्जाम. Reading repeatedly. And when you read this repeatedly, there are some methods which a learner can enforce, like practicing while reading. प्रैक्टिस रीडिंग स्पेशली प्रॉपर वे में रीड करना चाहिए. जहाँ डॉट है, जहाँ कॉमा है वगैरह जो भी है उसको एक प्रॉपर वे में रीड करना. लर्निंग इन मल्टीपल वेज, लाइक रिहर्सिंग द इंफॉर्मेशन शुड बी डन बोथ वर्बली एंड विजुअली. वर्बली भी यानी बोलकर एंड विजुअली इमेजिन कर. देन सेल्फ टीचिंग और टीचिंग टू अदर्स. आई डू सेल्फ टीचिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई हेल्प यू टीचिंग विथ, like teaching others में I teach others and that makes me also more confident and more knowledgeable. Inference, previous experience को based. Practical experience, use the content in practical life and at the end test, examine yourself. खुद की एग्ज़ाम लो, चेक करो सीखा है या नहीं.
6th, which of the following is not an example of intrinsic motivation? Motivation माने कि drive to do something, to achieve something. Intrinsic माने कि for personal achievement, personal interest based. So here Vishal is interested in chemistry. It is self-interest. Sunita is curious to know about innovation in her subjects. Curiosity, self-related. Ravi completes projects to become eligible to appear in examination. It is option C. रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के बेसिस पर जो होता है, इट इज़ एक्सट्रिंसिक. सो इट इज़ ऑप्शन सी. We will also look at the option D. Tripta opts for communication as she wants to enter into marketing business. See, here also self-interest. In self-interest, personal achievement, everything is related to intrinsic motivation. 7th, sampling in qualitative research is similar to dash sampling in quantitative research. In qualitative and quantitative, we have simple random in common. Qualitative research is usually non-probability based and quantitative research is probability based. So ये दोनों में ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है. देन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इसीलिए सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, देन स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये इसके टाइप्स है. प्रोबेबिलिटी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है. सो सिंपल, रैंडम और in probability and in qualitative. So in qualitative, simple random is like selecting a random person, but there are some predetermined standards. But in quantitative research, जो probability based है, selecting randomly without any standards or without any norms, direct selection. समझा? फिर आगे की भी देख लेंगे, जैसे कि सिस्टमैटिक में क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, सिस्टमैटिक भी इसी का पार्ट है. तो क्वांटिटेटिव तो सिस्टमैटिक में है एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिलेक्शन, लाइक रैंडमली किसी को चूज नहीं करेंगे, बट आफ्टर 4 या 5 पर्सन के बाद में ये 6th पर्सन को सिलेक्ट करना है, ऐसा. देन स्ट्रैटिफाइड जो होता है, उसमें स्ट्रैटा यानी कि ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स में से ही पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप में से पर्सन को सिलेक्ट करेंगे. एंड क्लस्टर में पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, लाइक अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे 1 2 3, देन उसमें से ये एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे. ना कोटा पर्पसिव एंड थर्ड वन है सिंपल रैंडम. तो सिंपल रैंडम का तो मैंने बोला कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये क्वालिटेटिव के पार्ट है. सो कोटा माने कि एक स्पेसिफिक कोटा सिस्टम, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ सैम्पल बेस्ड ऑन प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से सिलेक्टेड लोग लेंगे, उनका कोटा रहेगा. देन पर्पसिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्चर्स डिस्क्रिशन, मतलब रिसर्च की खुद की चॉइस बेस्ड रहेगा ये, कि उसको किसको लेना है किसको नहीं लेना है एज अ सैम्पल. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर दोज दैट हैव फिक्स्ड रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस माने कि MCQ, जो अभी ये वाले क्वेश्चन जो ये है MCQ, ठीक है. MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप. सो इसमें रिलेटेड टू बेसिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नो. एंकरेज इलेबोरेटिव रिस्पॉन्स, नो. इसमें या तो 4 ही ऑप्शंस रहेंगे, या तो यस और नो ही रहेगा. सो नो. अलाउज रिस्पॉन्डेंट्स नॉट टू आंसर, इट अलाउज अस टू आंसर, हम आंसर देंगे तभी तो पास होंगे. तो इसमें हैव फिक्स्ड रेंज, मतलब कि सिलेक्टेड ही 4 में से एक सिलेक्ट करो, या फिर Y या N में से एक सिलेक्ट करो, वो रहता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्विक आंसर्स कैन बी प्रोवाइडेड, ईजी टू अंडरस्टैंड, फिर रिजल्ट जल्दी आते हैं इनके, फिर आंसर भी इन कंटेक्स्ट एंड रिलेवेंसी टू द क्वेश्चन, आंसर भी क्वेश्चन के रिलेटेड रहता है, और डेविएशन का स्कोप काफ़ी कम होता है. दिस आर द एडवांटेजेस. क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ केस स्टडी. केस स्टडी क्या होती है, डिटेल स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई पर्सन है, ग्रुप है, इवेंट है, कुछ भी रहे, उसकी स्टडी को बोलते हैं केस स्टडी. कॉमनली यूज कब होती है, सोशल, एजुकेशनल, क्लिनिकल या बिजनेस रिसर्च में. और क्रॉस कल्चरल जो कि एक्चुअली भी कंपैरेटिव है, क्रॉस कल्चरल एक टाइप का कंपैरेटिव है, मतलब 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना वाला जो पार्ट होता है वही. क्रॉस कल्चरल को और एक क्या नाम दिया गया है, होलो कल्चरल और कंपैरेटिव स्टडीज. क्रॉस कल्चरल को ये नेम दिए गए हैं. तो ये जो केस स्टडी होती है ना, इसमें स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन बेस्ड जो स्टडीज़ होती है उससे रिलेटेड होता है ये क्रॉस कल्चरल. ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करेंगे, उसका ह्यूमन बिहेवियर का स्कोप क्या है, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कितने वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स होंगे, कैसा होगा, ये सब कुछ, इसको बोलते हैं क्रॉस कल्चरल. नाउ 10th, व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा.
What is research design? It is framework of methods, tools and techniques to selected by researcher to do research. मतलब रिसर्च करने के लिए जो भी टूल्स लगेंगे, मेथड्स लगेंगे, टेक्निक्स लगेंगे, वो सब कुछ जो रिसर्चर सिलेक्ट करेगा उसे बोलेंगे रिसर्च डिज़ाइन. ओके. A framework for every stage of collection and analysis of data. Perfect. बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं. द स्टडी इन विच यू प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग्स. नो, ये मेथड्स बताएगा, रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं बताएगा. ये मेथड जो यूज़ करेंगे हम रिसर्च करने के लिए उसके बारे में है. देन द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मेथड्स. नो, मतलब चॉइस होगी इसमें मेथड्स की. हमको ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फंडामेंटल रिसर्च फिलोसॉफी, जब फिलोसॉफी मतलब रिसर्च क्या है, किस रिलेटेड है, ये पता चलेगा, उसके बाद में ये चॉइस आएगी. ठीक है. रिसर्च डिज़ाइन विल हाईलाइट दिस चॉइसेस एंड अदर डिसीजंस अबाउट विच एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स एज वेल द हाइपोथेसिस अबाउट कैजुअलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. ये सब कुछ आएगा रिसर्च में. बट उसका डेफिनेशन पूछा है ना, उसका ये डेफिनेशन है, अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी. रिसर्च करनी है बट नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, मतलब कि वो थ्योरी बेस्ड रिसर्च नहीं करनी है, ऐसा बोल रहे हो वो. नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट द आंसर. ऑप्शन डी इज द आंसर. 11th का है डैश हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन डी. यहाँ पर ये वर्ड को ध्यान में रखो, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. तो जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है ना, वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो उसमें ऑब्जर्वेशन आता है, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद में एक पैटर्न डिसाइड होता है, फिर पैटर्न से आती है हाइपोथेसिस, और फिर हाइपोथेसिस से आता है थ्योरी. थ्योरी जो है वो एकदम एंड में आएगा. ये है पूरा इंडक्टिव का मेथड. ओके. स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करेंगे, फिर उसका पैटर्न डिसाइड करके हाइपोथेसिस देंगे और फिर थ्योरी मिलेगी. और हम जो डिडक्टिव देखते हैं ये कम्प्लीटली अपोजिट है इंडक्टिव के. जैसे कि इसमें सबसे पहले थ्योरी आएगी, फिर थ्योरी के बाद में थ्योरी से स्टार्ट होगा, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे और एंड में उसके बाद में ऑब्जर्व करेंगे और फिर कन्फर्मेशन सबसे एंड में आएगा. अभी इंडक्टिव पूछा है तो आगे के एग्जाम में डिडक्टिव पूछ सकते हैं. फिर बाकी भी देख लेंगे, जैसे कि नल माने कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. नो रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2, नो रिलेशनशिप. जबकि ये कब आता है, जब रिसर्चर फेल्स टू प्रूव द रिसर्च हाइपोथेसिस. जब हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर पाते तब नल हाइपोथेसिस आएगा. फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या आता है, रिलेशनशिप V1 इज इक्वल टू V2, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, ये आता है डायरेक्शनल में. 12. Which of the following is the most important component of normative research? Deductive method is the most important. अभी नॉर्मेटिव रिसर्च क्या होती है, ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो सिक्स टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देती है. व्हाट आर द रियल फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस. ओके. ये नॉर्मेटिव रिसर्च है ना, इसको ना थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी, फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस जो बनती है ये बेस्ड ऑन थ्योरी बनती है. और अभी हमने यहाँ पर ऊपर चेक किया था कि डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले हम थ्योरी लेंगे, फिर उससे हम हमारी हाइपोथेसिस निकालेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर एंड में कन्फर्मेशन. ठीक है. इसीलिए इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉर्मेटिव रिसर्च. डिडक्टिव मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी से रिलेटेड है नीचे क्वेश्चन. And yes, one more point. Survey भी, participatory observation and field work, these are also components of normative research. However, deductive method is the most important component. यहाँ पे most important पूछा है इसीलिए deductive method. बाकी ये जो के भी है ये भी components है हमारे research के. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे पैसेज बेस्ड है. ठीक है. अभी हम ना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
मैं पैसेज PDF में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लेना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर इसेंशियल? वाई इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर इसेंशियल? One minute. Why is the knowledge essential? It is essential for good speaking and writing. It is essential for good speaking and writing. ये सारा पैसेज में दिया रहता है. जी, यहाँ पर ही दिया है पहले. Lack of good knowledge of grammar, impossible to write correctly and effectively. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे पूरा, हमको फास्ट कवर करना है पूरे क्वेश्चन, इसीलिए. What should grammar be learned? How should grammar be learned? It must be learned as a whole. It must be learned as a whole. ये पूरा पैसेज में दिया है, आप एक बार पढ़ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी ऑफ ग्रामर डिमांड्स only the leisure time. Only the leisure time. Suitable title for passage: The importance of grammar in life. Acquisition of knowledge of grammar is not an easy task. अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये क्वेश्चन पढ़ रही थी मैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ ग्रामर इज विलिंगनेस टू लर्न. मन नहीं रहा तो पढ़ेंगे कैसे, फिर वो ग्रामर रहे या फिर पेपर 1 रहे. बाय द वे, विलिंगनेस टू स्टडी इज द मस्ट फॉर लर्निंग एनीथिंग. फिर चाहे बुक्स पढ़ो या फिर कोई न्यू हॉबी, कुछ भी रहे उसके लिए विलिंगनेस रहना चाहिए. 19. The effectiveness of communication is usually decided on basis of 19th. Quality of a feedback. Quality of a feedback. Effectiveness of communication. Communication effective है या नहीं, ये जब फीडबैक आएगा तब समझ में आएगा. बाकी के सारे ऑप्शंस कोई यूज़ के नहीं है. सेंडर्स इंटेंशन एंड क्राइटेरिया, इकोनॉमिक यूज ऑफ मीडियम, सिंप्लिसिटी ऑफ मैसेज, ये सारे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. बट इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड है? क्वालिटी पर ही ऑफ फीडबैक. अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है. टेलीविजन TRP येस, न्यूज़पेपर रैम नो, वेबसाइट हिट्स, फिल्म बॉक्स ऑफिस. ऑप्शन बी न्यूज़पेपर रैम. न्यूज़पेपर का क्या आता है? TRP. ओके हाँ, हम बाकी भी देख लेते. TRP माने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है, जो प्रोवाइड टू जज विच प्रोग्राम्स आर व्यूज द मोस्ट, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा चलता है. फिर अ न्यूज़पेपर इज़ अ पेरियोडिकल पब्लिकेशन. द कॉमन एग्जाम्पल, सॉरी जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर्स है, द हिंदू वगैरह, ये पब्लिकेशन बेस्ड रहते हैं. इनका कितना पब्लिकेशन होगा या कितना ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं. वेबसाइट हिट्स. हिट इज़ अ रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर फॉर अ फाइल. देयर मे बी मेनी हिट्स पर पेज व्यू, मतलब पेज व्यू पर डिपेंड होता है. और फिल्म बॉक्स ऑफिस, ये तो पता ही है सबको, बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई फिल्म ने. और रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ICT बेस्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फीडबैक कंपैरेटिवली स्लो, वीक एंड इनडायरेक्ट? मास. रिपीटेड क्वेश्चन. मास कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल, 2 लोगों का. ग्रुप कम्युनिकेशन, 2 से ज़्यादा, बट मास कम्युनिकेशन जितना बड़ा नहीं. फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्ड्स या फिर रिटर्न नहीं होता है, वो नॉन वर्बल. पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपने लोगों के बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, वो वाले बेसिस पर पूछा गया है. मेथड्स पर नहीं पूछा है. साइकोलॉजिकल बैरियर, सिंबल, कल्चरल बैरियर, सिलेक्टिव लिसनिंग, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, वॉइस डिस्ट्रप्शन. करेक्ट, चूज द करेक्ट मैच. ऑप्शन 3. ओके. साइकोलॉजिकल बैरियर में सिम्बल्स नहीं आते हैं. ओपिनियन, एटीट्यूड, इमोशंस, ये सारे आते हैं. साइकोलॉजिकल को और एक नाम है इमोशनल बैरियर्स. देन जो कल्चरल या सोशल है, उसमें सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं आएगा. सोशल कल्चरल बैरियर्स आर मैन मेड, कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज़, जो हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट्स होते हैं बेस्ड ऑन द सोशल और कल्चरल नॉर्म्स. और जो हमने सिलेक्टिव लिसनिंग वाला है, ये किसका पार्ट है? फिजिकल का. सॉरी, हाँ. और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि वॉइस डिस्ट्रप्शन. टेक्निकल बैरियर, कनेक्शन फेलियर, ऑडियो डिस्ट्रप्शन, यूज़ ऑफ प्रिमिटिव डिवाइसेस, ये सारे हैं टेक्निकल बैरियर्स.
मोर लाइक अ फिजिकल बैरियर। मोर फिजिकल बैरियर में क्या आएगा? नॉइज़, सबसे बड़ा बैरियर होता है नॉइज़। फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर डिस्टेंस, टाइम, इनविजिबिलिटी, इल हेल्थ, ओवर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे। और लैंग्वेज में तो पता ही आपको, डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, उनके डायलेक्ट अलग होते हैं, ये सारे लैंग्वेज में। 23rd, when a teacher uses a video clip or a sound clip or a PowerPoint presentation in classroom teaching, the communication can be best described as mediated group communication. Mediated group communication. It is a communication carried out by ICT and contrasted to the face-to-face mode of communication. Mediated group communication के examples क्या क्या है? Emails, PowerPoint presentation, then text messaging, instant messaging, online shopping, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे मीडिएटेड है, जो भी ICT कंप्यूटर्स को या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को यूज़ कर कर की जाती है। फिर मास कम्युनिकेशन, ये तो वाइड रेंज ऑफ पीपल के साथ होता है वो वाला। विजुअल कम्युनिकेशन डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में, जैसे चार्ट्स वगैरह, वो। टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड रहता है, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल टॉपिक्स या स्पेशलाइज टॉपिक्स। ओके, 24th, कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। ओके, वापस से वही क्वेश्चन जो पिछले साल भी रिपीट हुआ, मतलब 2015। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल सेल्फ, इंटरपर्सनल 2 लोगों के बीच, ग्रुप 2 से ज़्यादा, मास, यूज नंबर। ओके, अभी आगे पढ़ेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर। 5, 35, 7, 42, 6, 9, 36, 4, 5, 7 ज़ा 35, 7, 6 ज़ा 42, 42, 9 ज़ा 54, समझा? 9, 4 ज़ा 36, मतलब कि ये जो 2 नंबर से इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर मिल रहा है, वैसे ही ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये मिला, तो 6 × 9 54 मिल गया हमारा नंबर। 9 4 ज़ा 36। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? 3 1 5 6 3 4 1 6 4 5 2 5 5 6 3 6 6। ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, वो भी मैं आपको, अगर आपको जाना है तो वो आंसर की में जो प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, उसको डिवाइड बाय 3 करो सब नंबर को, तो सेम वैल्यू आती है। सॉरी, ये सारे नंबर्स एक्सेप्ट 1 डिविजिबल बाय 3 है, बट जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ वो है कि ये नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, ये ऑड है और ये इवन है, एंड आंसर भी यही है। लकीली आंसर भी यही था। ये मेरा मेथड है। बाकी इसको डिविजिबल बाय 3 करना है, जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है वो आंसर है। एग्ज़ाम में ऐसे मेथड्स कभी यूज़ करने पड़ते हैं दोनों भी साइड से, कभी लॉजिकल कुछ मेथड्स यूज़ करो, कभी इलॉजिकल करो, बट करो कुछ ना कुछ। फाइंड एन अप्रोप्रिएट लेटर कॉम्बिनेशन इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। KPMNOLQJSH, KPMNOLQJSH। ओके, ऑप्शन है ये। इसमें ना क्या किया है उन्होंने, पता है क्या? +2 -2 वाला गेम है ये, माने कि C, K + 2 M LM, फिर P - 2 N OP, जो O आता है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया अभी ये क्वेश्चन का। +2 -2, मैंने क्या बोला था पहले भी वीडियोज़ में कि आप ना A to Z और 1 से लेकर 26 ऐसा पूरा सीरीज़ बनाकर रखो एग्ज़ाम के, मतलब जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, क्योंकि ABCD बेस्ड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में होते हैं, तो ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है। 28, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज यूजिंग कोड सिम्बॉल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन 18 + 3 6 9 - 2 18 11 × 11 22 एंड 18 डिवाइडेड बाय 3 15। इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऑपरेशन इन दिस कोड। सो अभी यहाँ पर सीधा सीधा बताया, 18 + 3 माने 18 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर डिविडेशन आएगा। 18 डिवाइड बाई 3 आता है 6, देन 9 - 2 18, सो माइनस का साइन पे मल्टीप्लीकेशन। 11 × 11 यानी कि प्लस, 11 + 11 22, तो मल्टीप्लाई के साइन में प्लस की साइड आएगी। एंड देन 18 डिवाइडेड बाई 3 आता है
15, तो इधर माइनस की साइड आई। तो अभी बोर्ड मास यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ओके, यूजिंग बोर्ड मास। सो सबसे पहले डिविडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन एकदम एंड में आएगा। ओके, समझा? याद है ना सबको बोर्ड मास क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाई 3 4, देन 4 2 जा 4 12 जा 48, सॉरी हाँ 4 इंटू 4 आएगा, 4 इंटू 4 16, फिर बोर्ड मास में एडिशन 8 प्लस 16 24, और 24 माइनस 2, सॉरी 24 माइनस 6, 24 माइनस हाँ यहाँ पर 2 ही बचा है। अरे हाँ 2 ही बचा है। 24 माइनस 2 यानी कि 22। आंसर है डी, 22 आंसर है हमारे क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। ओके, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, कंफ्यूजन। इफ x y z आर नॉन जीरो नंबर्स, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y एंड y इज नॉट इक्वल टू z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी वैलिड। ठीक है, अभी पूछा है कि क्या पूछा है यहाँ पर, ये नॉन जीरो नंबर्स है और x है 2 टाइम्स y का, और y एंड z इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है x इज इक्वल टू y प्लस z। नो, इसको कैलकुलेशन में पुट ऑन करके देखने का, ऐसा मतलब कैलकुलेट करेंगे हम ये क्वेश्चन को सीधा सीधा। सपोज देखो x इज इक्वल टू 2y, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, तो इसके बेसिस पर करने का पूरा कैलकुलेशन। तो y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, सॉरी x बाई 2, सॉरी x बाई 2, y इज इक्वल टू x बाई 2। तो वैसे ही करने का, x बाई 2 इज नॉट इक्वल टू z, क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू z। सो ये वाला हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 2z। ऐसी एक सिचुएशन बताई उन्होंने, ऐसा एक सिचुएशन। तो इसीलिए इफ़ यू पुट y के जगह पे 1 लेंगे, 1 एंड x के जगह पे 2, ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए चल रहा है अभी। ये जो सिचुएशन है इसके लिए, इफ़ यू पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आएगा, x 3, x इज लेस देन z, x इज स्मॉलर देन z। ये हमारा ऑप्शन सी। डी तो डायरेक्ट कैंसिल है, डी इज कैंसिल। ओके, क्यू x माइनस वाई या x इज इक्वल टू वाई जेड। हाँ सॉरी मैं सबसे पहले मैंने सी का ही बता दिया था, ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है सी, उसका बताया ये वाला सिचुएशन। अभी x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई प्लस जेड क्यों नहीं होगा ये बताते हैं। क्यों, तो देखो x के जगह पे हमने 2y ले लिया ये वाले सिचुएशन में, इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाता है 2y वाई प्लस जेड। तो फिर यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है y इज इक्वल टू जेड, क्योंकि हमारा z की वैल्यू कितनी है 3, जो कि नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला कैंसिल। अभी ये वाली सिचुएशन देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या पूछा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। दोनों भी सिचुएशन में वैसा ही आएगा। देखो x माइनस वाई पूछा है यहाँ पर, तो हमने x की वैल्यू क्या ली थी 2y, x की वैल्यू क्या ली थी 2y माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। समझा? टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, एक वाई बचेगा इज इक्वल टू जेड। फिर से ऐसी सिचुएशन आएगी, फिर से पॉसिबल नहीं है। ये दोनों में वही हो रहा था ना, देखो यहाँ पर भी ये जेड को, ये वाई जो था यहाँ का, ये इसको यहाँ पर चले गया, तो ये माइनस में चले गया, उसकी वजह से आंसर नहीं आया। सिमिलरली नीचे भी वही हुआ, यहाँ पर 3y हो जाता था, y की वैल्यू 3 हो रही थी, इज इक्वल टू जेड, 3y इज इक्वल टू जेड, वो भी पॉसिबल नहीं है, y इज इक्वल टू जेड भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन हो गया गलत, और हमारा ऑप्शन है सी। सॉरी थोड़ा स्लो पेज हो गया था। सो अभी आगे बढ़ेंगे। 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, 49, 81, 100, 144। सो 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर एंड 144 12 का स्क्वायर। अभी ये सब तो स्क्वायर रूट्स है, ये तो इनमें कॉमन फैक्टर है, बट 7 9 10 एंड 12 इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है,
एक ही है 7, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होता है। बाकी 9, 3, 10, 10 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 12 तो 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो सिर्फ 7 है ऐसा नंबर, इसीलिए ऑड है ए। 49। आगे बढ़ेंगे। सुरेश एंड विद्या आर कजिन्स, माधुरी सिस्टर ऑफ विद्या, गणेश इज फादर ऑफ सुरेश, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू गणेश, सॉरी हाउ इज माधुरी रिलेटेड टू गणेश। सो अभी रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आजकल बहुत कम आते हैं बट पहले आते थे। सबसे पहले सुरेश एंड विद्या आर कजिन्स, मतलब कजिन हो गए, तो भाई बहन। माधुरी सिस्टर ऑफ विद्या, यानी कि माधुरी सुरेश और विद्या भी कजिन हो गए रिलेशन में। गणेश इज फादर ऑफ सुरेश, गणेश, हाउ माधुरी इज रिलेटेड टू गणेश, माधुरी जो है रिलेटेड टू गणेश, ये उसकी कैसे रिलेशन में आएगी। तो माधुरी है सुरेश की भी कजिन, बहन है, क्योंकि वो विद्या की भी बहन है, तो इसीलिए इट इज नीस। समझा? नीस का मतलब होता है बहन की या भाई की लड़की, बेटी, बहन की या भाई की बेटी जो होती है वो नीस होती है। सो यहाँ पर वो रिलेशन है। विद्या और माधुरी बहनें हैं, तो विद्या भी नीज ही है गणेश की। काफ़ी इजी था वो क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। इन अ कोड लैंग्वेज द वर्ड बैड इज रिटन एज 658, इन द सेम लैंग्वेज व्हाट कुड बी द कोड फॉर फिग, बैड, BAD लिखा है 658, BAD 658। तो अभी फिग को कैसे लिखेंगे, तो BAD, B कितने नंबर पर आता है 2, A 1 नंबर पर आता है और D 4 नंबर पर आता है। तो इन सबको +4 किया गया है, C +4 मतलब जो 2 + 4 6 हो जाता है, 5 + 5 1 + 4 5 और 4 + 4 8। अब फिग दिया है, तो फिग में F कितने नंबर पर आता है, F आता है 6 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर, FGH, हाँ 7 नंबर पर। तो इसीलिए इसमें +4 ऐड कर दो, +4 +4 +4, तो क्या होता है 10 13 11 है क्या आंसर? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी समझा मैंने जो बोला कि एक बार पूरे अल्फ़ाबेट्स विद नंबर्स लिख लो, इसीलिए काम आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ब्रदर सिस्टर, टॉल शॉर्ट, ब्लैक वाइट, ओल्ड यंग। ऑप्शन ए ब्रदर सिस्टर, ये एक रिलेशनशिप है, टॉल एंड शॉर्ट अपोजिट है, ब्लैक एंड वाइट अपोजिट है, ओल्ड एंड यंग अपोजिट है, एंटोनिम से है, बट ये वाला है एक रिलेशन, ये अपोजिट्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, DFEG JLKM GHIKRTSU, तो इसमें से ऑड वन पूछा है उन्होंने। अभी एक सर्टन ट्रेड पूरा सब फॉलो करेंगे। D+2F आता है, सबसे पहले वाला ऑप्शन है, D+2F आता है और F-1E, E+2G, +2 -1 +2 +2 -1 +2, ये वाला ट्रेड कॉमन लग रहा है, ठीक है। JLKM, J+2 L, L-1 K एंड K+2 M, करेक्ट। फिर अभी वापस से GHIK, G+1 आएगा, GHIJK, तो G+1 H आएगा +1, HI -1 और फिर KIK +2, J छोटा +2, फिर RTSU में RT के बीच में का गैप आता है +2 का, TS का है -1 का और फिर से S और U के बीच में +2 का गैप है, करेक्ट। तो हमारा आंसर है ये वाला GHIK, क्योंकि ये +1 -1 +2 फॉलो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। महेश इज टॉलर देन अरुण, गणेश इज शॉर्टर देन अरुण एंड सीमा इज टॉलर देन गणेश। अभी हु इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ओके। महेश टॉलर देन अरुण, गणेश इज शॉर्टर देन अरुण, मतलब गणेश इधर। सीमा इज टॉलर देन गणेश, सीमा इज टॉलर देन
गणेश। अरुण इज द टॉलेस्ट, नहीं पॉसिबल है, अरुण बीच में आ रहा है, महेश बड़ा है। गणेश इज शॉर्टर देन सीमा, करेक्ट है ये, क्योंकि सीमा इज टॉलर देन गणेश, इसका ही अपोजिट में दिया है ये वाला। सीमा इज टॉलर देन महेश, रिलेशनशिप ही बताया नहीं। महेश इज टॉलर देन सीमा, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा क्लियर बताया नहीं है। ओके, ऑप्शन बी, गणेश इज शॉर्टर देन सीमा। Assuming that following statements 1 and 2 are true, which of the following true? All teachers are managers and some teachers are females. All teachers, ये मैनेजर है, अरे all teachers are managers and some teachers are female. Some teachers are female. Some teachers are female. तो अभी क्या पूछा है? Some teachers are managers. करेक्ट। नो मैनेजर इज़ अ फीमेल, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ फीमेल मैनेजर्स भी आ रही है ना, तो इसीलिए ऑप्शन ए। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सो नाउ डाटा इंटरप्रिटेशन के वाले क्वेश्चन है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली अर्निंग ऑफ ₹35,000 पर मंथ वेंट ऑन अ हॉलीडे फॉर 2 weeks। यहाँ पर ये 2 weeks, how much could they have saved on food if they had stayed with relatives during the holidays? ओके, तो टोटल एक्सपेंस है उनका, टोटल अर्निंग है 35,000 का। फिर उन्होंने परसेंटेज ऑन एक्सपेंसेस ऑफ फूड, यहाँ पर देखो ये 30% का एक्सपेंस है फूड पर। तो अभी एकदम ईजी वे में बताती हूँ मैं आंसर। सपोज अपना टोटल वैल्यू कितना है अर्निंग का, 35,000 इंटू 30 डिवाइड बाय ये 100 क्यों नीचे आया इसका, बिकॉज परसेंटेज है, तो 35,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो इसका आंसर आएगा 1050। कैलकुलेट करके देख लो आप ही, 1050 आएगा, 10500 आएगा आंसर, मतलब 10,500 रुपये जो खाने पर उनका एक्सपेंस होता है। पर यहाँ पर पूछा है 2 weeks, स्पेशली 2 weeks पूछा है, तो ये जो 1050 है 500, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि सिर्फ 2 ही हफ्ते का पूछा है ना, तो इसका आंसर आएगा 5250। हो गया ना आंसर इजी, ऑप्शन बी 5250। ओके, अगर मंथ का एक्सपेंस पूछा तो वो 10,500, बट फॉर 2 weeks द एक्सपेंसेस 5,250 रुपीज़। मूविंग फर्दर, अ न्यूली मैरिड कपल अर्न्स, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अ न्यूली मैरिड कपल अर्न्स 35,000 पर मंथ इफ दे स्पेंड एज पर टेबल, हाउ मच कैन दे सेव इन 2 years? एज पर टेबल हाउ मच दे सेव इन 2 years? तो देखो टेबल में ना ये पूरा जो एक्सपेंस है, ये पूरा 35,000 का एक्सपेंस दिया हुआ है, ये पूरा जितना लग रहा है, ये पूरा ये जितना है परसेंटेज, ये पूरे 35,000 है, ये टोटल 100% है, 35 + 25 + 12 + 18 + 15, ये टोटल 100 होते हैं। ओके, तो 100 - 100 = 0, तो हमारा आंसर है नील। वैसे भी और 35,000 अगर कमा रहे हो और 35,000 उड़ा रहे हैं तो वो 0 ही होगा ना। अभी फिर से टाटा इंटरप्रिटेशन है। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कॉल्स रिसीव्ड बाय 6 डिफरेंट ब्रेकडाउन सर्विस सेंटर्स ऑफ अ बस ऑपरेटर इन अ सिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, अप्रैल से सितंबर तक। तो इसमें पूछा है, 39 का क्वेश्चन है, द सर्विस सेंटर दैट रिसीव्ड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स ड्यूरिंग 6 months। सबसे कम कॉल्स किसे मिले हैं? हमारे ऑफिशियल आंसर की में पता है क्या आंसर दिया हुआ है? डी, ऑप्शन डी दिया हुआ है, यू। अभी क्या करना है, टोटल ये सबको एडिशन करना है। तो जब सबसे कम आएगा तो इसका है 430, फिर वी का है 450। ऑप्शन में जितने वैल्यूज़ दिए हैं उसका ही देखना है, बाकी सबके नहीं करते बैठने चाहिए। पहले ऑप्शन में कितने दिए हैं उसको ही देखना। डब्ल्यू दे बोला है ना, एक्स पूछा है, एक्स का आता है 370 आता है। हाँ, अब ये ना मुझे ये वाला डाउट, ये क्वेश्चन में डाउटफुल इसीलिए दिया था क्योंकि जेड का भी 370 आता है। कैलकुलेट कर लो आप, आपको भी वही क्लिक होगा कि ये दोनों का सेम है, इसलिए जो सबसे कम बाकी वाला दूसरा वाला था उसको 430 वो कंसिडर किया है। ऑप्शन डी, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं। 40 मैक्सिमम पूछते तो वी आता, ठीक है। 40 द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ मंथली कॉल्स इज लार्जेस्ट फॉर सर्विस सेंटर
ओके, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके बीच में, ऐसा पूछा है उन्होंने। अभी यहाँ पर देखो ऑप्शन में कौन से दिए, सबसे पहले तो हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में पूछा है वी पूछा है, यू पूछा है, जेड और एक्स, ठीक है, वही ऑप्शन है जो ऊपर पूछे थे। अभी ऑप्शन में इतने पूछे ना, अभी हम उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले वी पूछा है, तो वी का सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर है 62 मिनिमम एंड मैक्सिमम 84, ओ सॉरी 87 मैक्सिमम 87 वी में, ठीक है। ओ भाई यस वी का ये वाला वैल्यू है। देन पूछा है यू 88 48 मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद में पूछा है जेड का मिनिमम कौन सा है 49, ओ सॉरी 42 है, 42 मिनिमम है एंड मैक्सिमम क्या है 76। देन पूछा है एक्स का मैक्सिमम कितना बता रहा है 83 एंड मिनिमम 52 मिनिमम, ठीक है। अभी ये सबको वापस से माइनस करो, जैसे कि यू 88 माइनस 48 40, 88 माइनस 48 40, 87 माइनस 62, इसका आंसर है 40 लिखो यहाँ पर। फिर 87 माइनस 62 25 होते हैं, 83 माइनस 52 31 और 76 माइनस 42 34, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा वी आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए वी सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस, सॉरी इज लार्जेस्ट पूछा है, ओ सॉरी लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट यू, ऑप्शन बी यू लार्जेस्ट पूछा है यू। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ते ही। ऑप्शन ए ऑप्शन यू, ओके। मिनिमम पूछते हैं तो 25। अभी और आगे बढ़ेंगे 41। आई गेस आंसर की में ना 40 को लेकर कंफ्यूजन है, 40 को लेकर, हाँ। क्वांटिटेटिव डाटा आर बेस्ट कंपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है, टाइप ऑफ डाटा हुज वैल्यू इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होती है वो होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, नंबर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल बार डायग्राम, ये जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं ना, ये ऐसे वाले, सॉरी नॉट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये वाले जो होते हैं ये बार डायग्राम्स। तो क्वांटिटेटिव डाटा सबसे प्रॉपरली इसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बेस्ट कंपैरिजन इससे होगा, ऐसा बोला है उन्होंने। इट कैन कंपेयर अ क्वांटिटेटिव डाटा इन अ प्रिसाइज मैनर, फ्रीक्वेंसी डाटा कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट द गिवन क्लास ऑफ इंटरवल्स, यानी कि जो एक्स एंड वाई पर दिया हुआ है कंपैरिजन, प्लॉटिंग बहुत प्रॉपरली एक्यूरेटली होगी। एरिया ऑफ बार रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल वैल्यू, ओके। अभी टेबल क्या होता है, टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, अभी ऊपर हमने टेबल ही देखे थे। और रोज एंड कॉलम्स आर यूज टू रिकॉर्ड एक्चुअल डाटा एज वेल एज कन्वर्जन ऑफ डाटा। डॉट प्लॉट माने के जो अल्टरनेटिव टू बार चार्ट है, ये मतलब डॉट प्लॉट्स 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल ऐसे डॉट्स देते हैं एक इस पर बार के ऊपर, ऐसे डॉट्स देते हैं ऐसे, उसको डॉट प्लॉट बोलते हैं। और पाई चार्ट तो आपको पता ही है, एक सर्कल होता है एंड सेक्टर डायग्राम, इट इज़ अ सर्कल एंड सेक्टर डायग्राम। इसमें डिवीजन करो कितने भी, ये टोटल 360 डिग्री का होता है एंड 100% में डिवीजन होता है इसका, पता है ना, यस। अभी हम आगे बढ़ेंगे। द proportions of related items are shown by पाई चार्ट, मतलब प्रपोर्शन। देखो अभी मैंने बोला ना पाई चार्ट में कि ये सपोज है, अभी ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखा था फूड एक्सपेंसेस, ये 30% फूड, ये क्लोथिंग, ये अदर एक्सपेंसेस, इस तरह से जो प्रॉपरली प्रोपोर्शंस में डिवीजन होता है उसको बोलते हैं पाई चार्ट,
उस पाई चार्ट से एकदम प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ अ सर्कल एंड सेक्टर डायग्राम. प्रोपोर्शन ऑफ ईच पार्ट शोन बाय एंगुलर वैल्यू ऑफ 360 डिग्री. डिग्री में भी आंसर आता है और परसेंटेज में भी कभी कभी देते हैं. सपोज ये 30 डिग्री रहा या फिर, तो उसके बेसिस पर हमको सॉल्व करना रहता है. आगे ओके. नाउ मूविंग 43. आइडेंटिफाई द पेयर दैट अपीयर्स इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? अरेंजिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस. मतलब किस टाइम पर कौन सा इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई उसके बेसिस पर अरेंजमेंट. तो अभी इसमें मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टैबलेट एंड लैपटॉप एंड टैबलेट. तो ये रिवर्स में है टैबलेट एंड लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप पहले आया था उसके बाद में टैबलेट आया था. ठीक है, ऑप्शन सी. आगे अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बीटा, गीगा, बिट, मेगा, टेरा. यहाँ पर ये देखो असेंडिंग नहीं पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है. तो सबसे बड़ा है टेराबाइट और सबसे छोटा है बिट. तो इसीलिए ऑप्शन ए टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, बाइट एंड बिट. टेराबाइट या जो सबसे बड़ा होता है वो 1024 GB वाला होता है, ये GB. फिर गीगाबाइट 1024 MB, मेगाबाइट 1024 बाइट्स, किलोबाइट्स. और बाइट क्या होता है? 8 बिट्स. ये 8 बिट्स वाला होता है बाइट. और बिट क्या होता है? 0 या 1, बाइनरी डिजिट्स. आइडेंटिफाई द मैचिंग पेयर्स. JPEG फोटो एंड पिक्चर, MP3 ऑडियो और वीडियो, XLS ZLS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, AVI स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. इसका ऑप्शन है A एंड B, मतलब 1 एंड 2. ए है आंसर. ओके. MP3 तो गानों के लिए, JPG फोटो जो फोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं. फिर ये जो XLS है ये एक्सेल बाय फाइल्स के लिए, फाइल सेव्ड बाय एक्सेल. जो वर्कबुक्स जो फाइल सेव्ड बाय एक्सेल होती है उसके लिए XLS यूज़ होता है. फिर जो AVI है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, AVVV जो होते हैं ना, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, नॉट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. ऑडियो वीडियो इंटरलीव ऑल्सो known by its acronym. It is a multimedia container format जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था. ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है ये. यूज टू स्टोर ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन डिजिटली. ओके. एक्सेल बाइनरी फाइल फॉर्मेट, ये XLS का फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है एक्सेल बाइनरी फाइल फॉर्मेट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके ये फाइल्स बनती है. ना आगे. In the context of internet, UGC stands for UGC. In the context of internet, University Grants Commission मत लिख लेना. User generated content और यूज़र क्रिएटेड कंटेंट, UCC. आगे के एग्जाम में अगर UCC आया तो यूज़र क्रिएटेड कंटेंट माने विच इज़ एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट सच एज इमेजेस, वीडियोज, टेक्स्ट, ऑडियो दैट हैज़ बिन पोस्टेड बाय यूज़र रादर देन ब्रांड्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया. मतलब ही अपना जो हम इंस्टा पर या कहीं पर भी जो पोस्ट करते हैं वो. इंस्टाग्राम इज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर UGC. यूनिवर्सल ग्राफिक कम्युनिकेशन का मतलब ग्राफिक कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट, इट इज कम्युनिकेशन थ्रू ग्राफिक एलिमेंट्स. और यूजर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स जो यूज़ करते हैं, वैलिड दैट कंटेन वैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स. ऑथेंटिकेशन सर्विसेज जो यूज़ करते हैं ये यूजर ग्रुप. Which of the following software is used for processing photos or pictures? It is Photoshop. Photoshop तो कोई बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं. Now 48. In the context of internet, identify the incorrect pair from the following: GOV government website, COM commercial website, AC accounting website, AGU AC accounting website. Incorrect है ये. Okay. AC is not an accounting website. ये जो है ये सारे डोमेन नेम्स है. और डोमेन नेम इज एन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग दैट डिफाइंस अ रिलेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अथॉरिटी और कंट्रोल विद इन द इंटरनेट. डोमेन नेम सिस्टम. ओके. GOV माने कि गवर्नमेंट इंडिकेटिंग इट्स रेस्ट्रिक्टेड यूज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज. .com वाले जो होते हैं वो कमर्शियल यूज. और EDUE माने कि एजुकेशन रिलेटेड. फॉर अकाउंटिंग वेबसाइट्स करंटली देयर इज नो एक्सक्लूसिव रजिस्टर्ड इंटरनेट डोमेन. बट फिर भी बहुत सारे यूज़ क्या करते हैं, ICAI, ORG, फिर NIC, ऐसे वाले जो यूज़ करते हैं ना वो वाले, उनके लिए भाई एक
कंफर्म नहीं है अभी तक। 49 अब इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है, दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? ये काफ़ी फेमस प्लेस है, इट इज़ वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाइड बाय IUCN, IUCN आइडेंटिफाई करता है जो भी बायोडाइवर्सिटी एरियाज रहते हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एरिया माने कि डिस्क्राइब्स द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हर तरह की वैरायटी रहती है यहाँ पर, वेजिटेशन में भी, एनिमल्स में भी, फ्लोरा एंड फौना दोनों में। उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी भी होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट और हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, वो भी स्पेशली ईस्टर्न हिमालयस, ओके, ईस्टर्न हिमालयस। दो ही है इंडिया में। द एयर पोल्यूटेंट नोन एज सेकेंडरी इन नेचर इज परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन जो होता है ना, पैन PN बोलते हैं, देखो काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। इट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये पोल्यूटेंट्स को सेकेंडरी या प्राइमरी किस बेसिस पर बोला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो प्राइमरी डायरेक्टली इमिटेड होते हैं फ्रॉम सोर्स टू द इन्वायरमेंट, वो एकदम हार्मफुल वे में, और जो सेकेंडरी है ये डिराइव होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से। जैसे कि देखो ये सो है SO2, अमोनिया NH3, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, फिर मीथेन, प्रोपेन, CFC, ये सारे जो है ये प्राइमरी है। और ये जो पैन है H2SO4, SO3, HNO3, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, ओके। और ये पैन किससे इमिट होता है? मोटर व्हीकल्स, टोबैको, स्मोक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनसे इमिट होता है पैन। आगे, इन हिली एरियाज लैंडस्लाइड ऑकर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, विंड्स, ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन ए। झाड़ जब तोड़ देते हैं तो वो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है और इसीलिए वो स्लाइड होती है, जो लैंड है वो स्लाइड होती है। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिकेटेड कैन ऑल्सो अल्टर द रेट्स एंड ट्रैजेक्टरीज ऑफ लैंडस्लाइड, ग्रेजिंग से भी हो सकता है क्योंकि वो भी रूट्स, मतलब जो सॉइल में जो रूट्स रहते हैं प्लांट के वो भी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल लूज हो सकती है। बट डिफॉरेस्टेशन है प्राइम। फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर। फ्लाई ऐश के ऊपर 15 में भी क्वेश्चन था, 13 में भी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, रिलेटेड रहे एक दूसरे से, उसी वे में रिपीट होते हैं। फ्लाई ऐश ऑल्सो नोन एज पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश is a coal combustion product composed of fine particles that are driven out of the boiler with the flue gases in the thermal power plant. इसको पार्टिकल पोल्यूशन भी बोला जाता है, पार्टिकुलेट पोल्यूशन भी बोला जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। और सपोज जैसे इट अफेक्ट्स हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फील्ड्स, लॉन्ग इनहेलेशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। फिर उसको एक ह्यूज लैंड लगता है ऐश पॉन्ड्स या उससे रिलेटेड चीज़ें बनाने के लिए, और इनका डिस्पोजल अगर आपने वाटर में किया देन इट विल अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ। फॉर क्वाइट प्रोटोकॉल्स एम्स एट स्टेबलाइजिंग कंटेनिंग इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मॉन्ट्रियल वाला है ओजोन से रिलेटेड। और ओके, क्वाइटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था, एग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC adopted in 1997, UNFCCC 19, my pen is not working again, UNFCCC 1997, ओके। इसमें NX1 NX2 कंट्रीज़ है। फिर इतना डिटेल में पूछते नहीं एग्जाम में, यूजुअली सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि कौन सी गैसेस को परमिट किया, प्रोहिबिट किया, देन उसके बाद में किससे रिलेटेड है, यही सारे क्वेश्चन आते हैं एकदम बेसिक वाले। A major cause of waterborne diseases in India is pollution of water. इंडिया के कहीं पर भी pollution of water is the major cause. और waterborne diseases कैसी है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोलेरा, ये सारी waterborne diseases. Now, education related. Which of the following is a degree awarding body? So CSIR
UGC गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, ICHR इसका है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, बाकी UGC तो अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CSIR वो R&D नॉलेज बेस वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन ही जो अभी MHRD वो फेलोशिप देते हैं। ये वाली जो है ना, ये फेलोशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, लर्नर्स। ओके, UGC के तो आपको पता ही है, अभी बहुत बार रिपीट हो गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट 3 टाइप की लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट है वो दोनों में आती है, पावर्स टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनिमल एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये सब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। ओके, यूनियन में सारे बड़े बड़े जैसे फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस, ये सब। और स्टेट लिस्ट में पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, पब्लिक ऑर्डर, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब आता है। आगे और हाँ, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू ये वाला आया था। फुल फॉर्म ऑफ BCUD, बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट। BCUD का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, इज एन एकेडमिक कोर यूनिट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड एज पर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 1994। ठीक है, वो क्यों किया था? रिवाइज सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेज, मेक कोर्सेज इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, वोकेशनल बायस मतलब जॉब रिलेटेड, जॉब से प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन, ई लर्निंग, अंडरटेक रिसर्च इन फ्रंट लाइन, इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ नॉलेज, नेशनल नॉलेज कमीशन, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होने चाहिए, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए ये सब के लिए। इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र अ बोर्ड ऑफ स्टडीज इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, co-opted teachers and co-opted experts. Board of studies, there shall be a board of studies for every subject or group of subject prescribed by the statutes. The board of studies shall be primary academic body of the university. ऐसा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम। लॉन्ग फॉर्म ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वेरी बेसिक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड कब एस्टैब्लिश की थी? 1945 में। पहले एडवाइजरी बॉडी थी और फिर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी कब बनी थी? 1987 में। 1987 में बनी थी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी? कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। एक्सटेंशन एक्टिविटी माने कि जो पढ़ाई को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। engagement and outreach activities of university by which they interact with constituent groups of state university. कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उनके लिए जिनका कहीं एजुकेशन रुक जाता है या फिर वो कहीं जाकर एजुकेशन नहीं ले पाते उनके लिए। सो इट इज़ ओवर। होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।